Hello everyone. I hope you all are well. Today we are going to study about capacity of parties. In India, Section 11 of Contract Act deals with the competency of contract and provides that every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. It means that every person are competent who are cross the age of majority and who is sound mind and the person who are not disqualified from any law. The age of majority in India are 18 year old. It follows that the following persons are incompetent to contract. The person mentioned here are incompetent to contract. If you are doing a contract with that person, the contract is illegal. Minor, person of unsound mind, person disqualified by law to which they are subject, contract entered into by person mentioned above are void. माइनर, अगर आप किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो मतलब वो 18 ईयर से कम है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वो लीगल नहीं होगा. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी आप ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, वो मतलब वो उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा. हु इज़ माइनर? एन इन्फेंट और अ माइनर इज़ अ पर्सन इज़ नॉट अ मेजर पर्सन. जो मेजर होगा, जो मेजर नहीं होगा वो माइनर होगा. एनी पर्सन अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया हु इज़ नॉट येट 18 इज़ कॉल्ड माइनर. हमारे इंडिया में 18 ईयर्स से कम एज को माइनर बोला जाता है. अ माइनर इज़ अ पर्सन हु डज नॉट रीच द एज ऑफ 18. जिसकी जो अभी तक 18 का नहीं हुआ है वो माइनर होगा. एंड एवरीवन हु गेट्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस बच्चे को या उस पर्सन को 18 ईयर्स का होना होगा. रूल्स रिगार्डिंग माइनर एग्रीमेंट. There are different rules regarding minor agreement. If you are going to do a agreement with minor, you have to agreement void ab initio, no rectification, can be promissory or beneficiary, no estoppel, no specific performance, liability for torts, no insolvency, partnership, can be an agent, cannot bind parent or guardian, joint contract by minor and adult, minor as a shareholder, surety for minor, liability for necessaries. The first point is agreement y ab initio. If you are doing a contract with the minor, it is void at the agreement level. An agreement with or by minor is void. Section 10 of the Indian Contract Act requires that the party of a contract must be competent, and Section 11 says that a minor is not a competent. According to Section 10, if you are going to do a contract, then Section 10 of the Indian Contract Act requires that the parties to a contract must be competent, and Section 11 says that minor is not competent. सेक्शन 10 में बताया गया है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, बट सेक्शन 11 सेज कि वो माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता. लीडिंग केस इसमें है अ माइनर बोरो 20,000 फ्रॉम बी एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड a mortgage in his favor. He became a major a few months later and filed a suit. एक ए ने पैसे बोरो किए हैं बी से और उसके बदले उन्होंने मॉर्टगेज लिया उससे, बट कुछ टाइम बाद वो मेजर हो गया
क्या वो श्यू कर सकता है या नहीं? लीडिंग केस क्या है? मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोसी 1903 for the declaration that the mortgage executed by him during his majority was void and should be cancelled। जो उसे ने mortgage दी थी वो मानी नहीं जाएगी क्योंकि वो उस टाइम मेजर माइनर था। नो रेटिफिकेशन। An agreement with the minor is completely void. A minor cannot rectify the agreement on attaining majority because a void agreement cannot be rectified. A person who is not competent authorize an act cannot give the validity by rectifying। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है माइनर के साथ तो वो रेक्टिफाई नहीं होगा। आप सोचो कि वो 2 महीने बाद मेजर हो जाएगा, मतलब उसकी 18 ईयर्स का हो जाएगा तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इफ़ वन बिकमिंग मेजर, अगर वो मेजर हो चुका है मतलब वो 18 ईयर या 18 ईयर क्रॉस कर चुका है तो आप उसके साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो बट पुराने वाले को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। माइनर कैन बी अ प्रोमिसी और बेनिफिशरी। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशरी टू द माइनर इट कैन बी इन्फोर्स बाय हिम। अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया है तो वो कर सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अ माइनर फ्रॉम ब्रिंग अ बेनिफिशरी। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ पेई और a promisee in a contract. Thus, a minor is capable of purchasing immovable property and he may sue to recover the possession of the property upon tender of the purchase of money. Similarly, a minor in whose favor a promissory note has been executed can enforce it. No staple against a minor. Where a minor, by representing his age, has induced that the other party enter into a contract with him। माइनर की एज को ध्यान में नहीं रखते हुए आपने मिस रिप्रेजेंट करके अगर उसके साथ माइनर साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो ही कैन नॉट बी लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। वो उस चीज़ के लाइबल नहीं होगा। आपको चेक करना चाहिए वो एलिजिबल है या नहीं, वो मेजर है या नहीं। देयर कैन बी नो स्टेपल अगेंस्ट अ माइनर। माइनर के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई केस नहीं होगा। इट मीन्स ही इज़ नॉट ए स्टेपल फ्रॉम द प्लीडिंग हिज इनफिशेंसी इन ऑर्डर टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड। हम माइनर के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बनी है। अ गार्डियन ऑफ अ माइनर कैन नॉट बाइंड अ माइनर by an agreement for the purchase of immovable property, so minor cannot ask for the specific performance। A guardian of a minor cannot bind the minor by an agreement for purchase the immovable property, so the minor cannot ask from the specific performance contract with the guardian had no power to enter into। Liability for torts। A tort is a civil wrong। A minor is liable in tort unless the tort in the reality is a breach of contract। Those where a minor borrowed a horse for riding, only he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse। But a minor cannot be made liable for breach of contract by forming the action of tort। You cannot convert a contract into a tort to enable you to sue an infant। आप माइनर को नहीं बोल सकते, माइनर इसके लेबल नहीं होगा अगर वो जो उसने घोड़ा खरीदा है वो किसी और ने, उसके फ्रेंड ने उस पर जंप करके उसको किल किया है। इसमें माइनर लाइबल नहीं होगा। नो इंसॉल्वेंसी। अब माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एज ही इज़ इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आप माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल ही नहीं था। आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, ड्यूज हुए तो पेबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर एंड ही इज़ नॉट पर्सनली लाइबल। वो उसकी कंपनी
उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से आप पे कर सकते हो, बट आप बोलो कि वो पर्सनली लाइबल होगा तो वो नहीं होगा। पार्टनरशिप, अ माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर। वैसे तो वो पार्टनरशिप पार्टनर्स में नहीं आ सकता, बट अगर उसके बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप की जा रही है तो वो आ सकता है। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एजेंट भी हो सकता है। माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट लाइबल टू हिज प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्ट। अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लाइबल। वो एज ए एजेंट वर्क कर सकता है, वो ड्रॉ डिलीवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ डिलीवर और इंडोर्स भी कर सकता है, बट वो उस चीज़ के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन इन द absence of authority express or implied infant is incapable of binding his parent or guardian even for necessaries. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent. Joint contract by minor and adult. In such case, the adult will be liable on the contract and not the minor. अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, तो उसके लिए माइनर जिम्मेवार नहीं होगा। इन सैन दास वर्सेस रामचंद वेयर देयर वाज अ जॉइंट purchase by two purchaser, one of them was minor, it was held that vendor could enforce the contract against the major purchase and not the minor. Surety for the minor. In contract of guarantee, when the adult stand for a minor, then adult is liable to third party as there is a direct contract between the surety and the third party. अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो जो उसका श्योरिटी पर्सन होगा वो लाइबल होगा, माइनर नहीं होगा। माइनर एज अ शेयर होल्डर, अ माइनर बीइंग एन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। इफ़ बाय द मिस्टेक ही बिकम मेंबर, द कंपनी कैन रिसीव द ट्रांजेक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर। अगर वो गलती से बन भी गया है तो कंपनी उसको उसका नाम रजिस्टर से हटा सकती है, but a minor may acting through his lawful guardian become a shareholder by transfer of transmission of fully paid shares to him. वो शेयर होल्डर तब बनेगा जब वो अपने गार्डियन के अंडर चल रहा हो और उसको फुली पेड शेयर्स उसके पास हो, तो बट एज उसका गार्डियन उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, तब वो शेयर होल्डर बन सकता है। Liability for necessaries. The case of necessaries supplied to the minor or to any other person whom such minor is legally bound to support in government governed by section 68 of the Indian Contract Act, a claim for necessaries supplies to minor is enforceable by law, but a minor is not liable for any price that he may promise or never for more than the value of necessaries. अगर कोई उसको नेसेसरी की चीज़ें चाहिए और आपने सप्लाई की है तो उसके लिए माइनर माइनर लायबल नहीं होगा अगर जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? जिसने वो सप्लाई नेसेसरीज प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं। नेसेसरीज, देयर इज़ नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। अगर किसी पर्सन के, क्योंकि माइनर तो लायबल नहीं होगा बट उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी आप उससे उससे हम ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। टू रेंडर माइनर स्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज टू कंडीशन में बी सर्टिफाई। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबल नेसेसरी फॉर ही सपोर्ट इन ही सिचुएशन। वो लायबल होगा अगर अच्छी, मतलब उसके लाइफ में जो उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें चाहिए होती है उसके लिए द माइनर मस्ट नॉट हैव द ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरी। उसके पास नहीं होंगी वो चीज़ें तो होगा वो लायबल, अगर उसके पास सफिशिएंट पड़ा हुआ है तो वो लायबल नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।